اگر آپ کمر، جوڑوں اور مہروں کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، ایک دودھ کا کپ لیجیے، آپ پیالہ لے لیں، گرم دودھ ہو، ابلا ہوا ہو، خالص دودھ ہو، اس میں ایک انڈا ڈالیے، اگر دیسی مل جائے اور واقعی دیسی ہے تو سبحان اللہ، اور اس میں شہد ڈال دیجیے، دودھ ہو، انڈا ہو اور شہد ہو، بس اب یہ مکس کریں، ملائیں، یعنی ایک انڈا، ایک بڑا چمچ شہد اس میں ڈالیں اور خوب ملائیں، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے تھے، تجربات کے وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھے، تجربات کے پرنسپل تھے، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا تجربات کے پرنسپل، بہت تجربات تھے، ان کے مشاہدے کی نظر بہت تیز تھی اور کمال کی باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب انڈا، دودھ اور شہد چھوڑتا ہے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور جس نے بھی کیا کہنے لگے یہ پرانی ریت روایتیں تھیں ہمارے بڑوں کی، ہم نے چھوڑی اور ہم کہاں سے کہاں گھوم گئے اور گم ہو گئے۔ اور واقعی اسی طرح یہ ٹوٹکا جوڑوں کا علاج ہے، کمر کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے اور مہروں کا علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہیں ہم نانا کہتے تھے، بہت بوڑھے تھے، وہ بڑھاپے میں انڈے پی لیتے تھے، ایک انڈا پی لیا، دوسرا پی لیا، تیسرا پی لیا، چوتھا پی لیا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ نانا کیا کر رہے ہیں، بالکل کمزور بوڑھے۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم، اس میں شہد ملا کے۔ وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے۔ ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی۔ وہ اس وقت میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ، وہ 90 سے اوپر کے تھے۔ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی۔ لیکن آپ سے ایک عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں، پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا، انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھیں اور مرغیاں انڈا دیتی تھیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا۔ تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا۔ پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا۔ بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں۔ اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے۔ ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں۔ ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت۔ پریشان کن بات، بہت اس علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا۔ کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے۔ کہا کہ 40 دن کر کے آج سالہ سال ہو گیا ہے۔ جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ایک درویش تھے، وہ قلم تراشتے تھے، سرکار کا فرمان لکھتے تھے تو قلم تراشتے تھے، اس تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے کٹھے کرتے گئے۔ کہا جب میں مروں، میرا پانی جب گرم کرنا، جس میں بیری کے پتے ابالنا، اس کے نیچے یہ آگ جلانا۔ جو روح کا مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے کٹھے کرتا ہے، مغفرت کے، رحمت کے، عطا کے، فضل کے، اس کے کرم کے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ حضور کے بال مبارک ہیں، میری زبان میں رکھ دینا، میرے منہ میں رکھ دینا،
हजूर के नाखून मुबारक बाद सहाबा ने जमा किए, फरमाया हमारी आंखों में रख देना। 20,000 से ज्यादा महंगी चादर मेरे आका की थी, मिन्नत करके उसको मुंह मांगी कीमत ली और फरमाया मेरे सीने पे रख देना, मेरे सीने पे रख देना। खुद बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन छोटे छोटे मगफरत के, रहमत के बहाने तलाश करते रहते हैं। कहीं इधर से मिल जाए, कहीं उधर से मिल जाए, कहीं उधर से मिल जाए। मगफरत के, रहमत के बहाने तलाश करते रहते हैं। खुशकिस्मत इंसान वो होता है जिसको ये तलाश नसीब हो जाए, ये तलब नसीब हो जाए। खुशकिस्मत इंसान है जिसको ये तलाश नसीब हो जाए, ये तलब नसीब हो जाए और वो इस तलाश और तलब में लग जाए। हत्ता कि यहां तक तलब और तलाश की बात चली, यहां तक कि अपने जूते उन जूतों के साथ रखते थे, शायद कोई ऐसा जन्नती पांव हो मेरे जूते को लग जाए, मेरा भी काम बन जाए। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक दुर्वेश थे, रूह की मंजिलें तय करते करते उनके खादिम ने जूते इलादा करने शुरू कर दिए। आप समझ गए ये जहन्नमियों के जूते हैं, ये जन्नतियों के जूते हैं। आपने फरमाया इससे सारी रूहानियत एक तरफ कर लो, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, और उसको उस मंजिल से हटा दिया जिससे रूहानियत की तरक्की होती थी, यानी कश्फ हासिल हुआ। कुछ अरसे के बाद उसका वो कश्फ खत्म हो गया, उसने जूते इलादा करने शुरू कर दिए थे, जूते इलादा करने शुरू कर दिए थे। गंदम पीसते हुए, गंदम बोते हुए, गंदम गल्ला चावल काटते हुए कौन से हाथ लगे थे, किन हाथों से ये गंदम चावल पिसी और किन हाथों से आई, वो हाथ बोलते थे और कहते थे नहीं ये लुकमा नहीं है, ये लुकमा ठीक है। अगर मैंने ये लुकमा खाया, अगर मैंने ये लुकमा खाया तो इस लुकमे में नूर नहीं, जब नूर नहीं मेरी इबादत तस्बीह जिक्र कैसे होगी। एक दुर्वेश बैठे थे, उनका लांगरी लंगर पका रहा था, तो उसने अपनी देग के ऊपर जैसे मारते हैं चावल को हटाने के लिए, हिलाते हैं, तो जब ये हिलाया तो आवाज पैदा हुई। साहिबे नजर, साहिबे कश्फ थे, फरमाया इस लंगर को जमीन में चुपके से दफन करा दो। हजरत कुछ नापाक तो हुआ नहीं। फरमाया जब इसने कफगीर ये हिलाया तो उससे नकारे की आवाज पैदा हुई, बजाने की आवाज पैदा हुई, और मैंने कश्फी नजर से देखा, कश्फी नजर से देखा इसके अंदर से नूर निकल गया है, बेनूर खाना है। ये बेनूर खाना मैं अपनी खानकाह में बैठे, अपने आस्ताने और तस्बीह खाने में बैठे फुकरा को खिलाऊंगा तो ये बेनूर खाना खा के कहां अल्लाह अल्लाह करेंगे। इन छोटी चीजों पे नजर, इन पे नजर, इन पे नजर। गाड़ी तैयार है? उसने कहा हाँ। उसने कहा गाड़ी में बैठते हुए कहा तुमने हवा को चेक नहीं किया? उसने कहा किया है। उसने कहा करा। उसने कहा ये 2 पाउंड ज्यादा थी। उसने कहा मैं गाड़ी बोल रही है, गाड़ी में हवा इधर कम थी इधर ज्यादा थी। गाड़ी के शीशे देखे, तेल देखा, गेज देखा, पानी देखा। सफर करते हुए अगर इन चीजों पे नजर ना हुई तो रास्ते में ही रुक जाएगा। तो हम रूहानी मुसाफिर हैं, हमने सफर करते हुए इन चीजों पे नजर रखनी है, इन चीजों पे नजर रखनी है। हजरत इमाम मूसा काजिम रहमुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि वो एक सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने दावत की, आपने उन फुकरा की दावत को कबूल फरमाया और दावत के लिए जब बैठे तो उन्होंने गोश्त दिया, दूध दिया, रोटी दी, कुछ खाना दिया। आपने कुछ चीजें एक तरफ कर दी और कुछ चीजों का इंतखाब फरमाया और वो खाया, बाकी चीजें नहीं खाई। तो पूछा हजरत ये चीजें? फरमाया मुझे इनमें बरकत मिल रही है, इनमें बरकत नहीं मिल रही। मालूम यह होता है कि या तो इनके पकाने वाला कोई बेनमाजी है, या जिक्र नहीं किया, या फिर इसका हसूल मशकूक है, हसूल मशकूक है। मैंने बड़ों से एक बात सुनी, कहने लगे हमारे पड़ोस में हमसायों में शादी हुई तो उन्होंने एक किसी की बकरी चोरी की, उस चोरी को ज़बा किया और शादी में पकाया। कहा कि एक अल्लाह वाली माई थी, जिक्र करने वाली खातून थी, उसके सामने रखा
تو वो बोटियां एक तरफ फेंक रही थी और कह रही थी बेज़ायका है, लगता है कि हसूल ठीक नहीं, हासिल ठीक नहीं, ठीक से तरीके से इसको हासिल नहीं किया। रूह का मुसाफिर इन चीजों पे नजर करता है। कहते हैं शीशे में मुझे एक बंदा लेके गया सफर में, उसका शीशा बंद ना हो, सख्त सर्दी, उसने मुझे नहीं बताया शीशा बंद ना हो सख्त सर्दी में, जी मेरी गाड़ी में आप बैठ जाएं, पुरानी है आप कबूल कर ले। मैं बैठ गया, अब शीशा बंद ना हो, सख्त हवा, सख्त मिट्टी, वो शीशे को कोशिश करता रहा, उसे पता था शीशा खराब है। जो रूह का सफर होता है उसमें हर चीज पे नजर होती है, हर चीज पे नजर होती है। ये अहलुल्लाह आले मार्फत, अल्लाह के नेक बंदे इन चीजों पे नजर रखते थे, इन चीजों पे नजर रखते थे। हल चला रहा था, हल चला रहा था, चलाते चलाते थूका तो किबले की तरफ थूक दिया। अदब के खिलाफ है, कोई उस तरफ थूकने वाला काफिर नहीं हो जाता, अदब के खिलाफ है। अपने आप को कहा अदब करना जरूरी है, तुझे कई दफा कहा है तो अदब कर, अपने आप से मुखातिब, तुझे कई दफा कहा है कि अदब कर, तो अदब नहीं करता। अब तेरे जिम्मे है इस थूक को मुंह से उठा और वापस दूसरी तरफ फेंक, अपने आप से कहा। मुंह ले गया करीब, जब करीब पहुंचा तो वो लाल जवाहिर बन गई थूक, उठा लिया, हैरान हुआ। बंदर ख्याल आया लालों की तो जोड़ी होती है, दो होते हैं, फिर थूकूं एक और लाल बन जाएगा। पहले गलती से थूका था, ना चाहते हुए किया था, अब चाहत से कर रहा, फिर थूका और फिर थूकने के बाद फिर जो मुंह लगाया, रावी और वो बिच्छू बन गया, उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। जो रूह का मुसाफिर है वो हर चीज पे नजर रखता है, उसकी हर चीज पे तवज्जो है। मैं एक सफर कर रहा था तो एक बंदे ने कहा मेरी विंडो सीट है, मैं हट गया, बैठ गया, खुद ही कहने लगा, मैंने कहा मैंने कह के विंडो सीट ली है, जहाज की विंडो सीट ली है, मैंने सोना है, और अगर खाना देने वाला आए तो उनसे कहे मैंने खाना नहीं खाना। उसने यूं क्या सो गया, उसने कहा मैंने लंबी नींद करनी है। कुछ चीजें जिंदगी में शामिल करनी होंगी, कुछ जिंदगी से चीजें निकालनी होंगी, कुछ चीजें जिंदगी में शामिल करनी होंगी, कुछ चीजें जिंदगी से निकालनी होंगी। रूह का सफर तय करना है, रूहानियत का सफर तय करना है, रूह के मनाजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाना है, रूह के मनाजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाना है। अगर ये सफर हमने अपने मिजाज और मर्जी से तय किया, अपनी तबीयत से तय किया, तो उसका जो नुकसान होगा वो यही होगा कि इंसान फिर सारी जिंदगी गुजार देगा, तरक्की नहीं होगी। तरक्की के लिए अपनी तबीयतों और मिजाजों को तोड़ना पड़ेगा, तरक्की के लिए अपना कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा तो फिर कुछ पाना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा तो कुछ पाना पड़ेगा। 2-3 दिन आप जागे हैं, मज़ामीन मिले हैं, आज फिर मजमा सो रहे हैं, मैं क्या करूं? अपने सामने बैठे बंदों को मैं जगा रहा हूं, तो बाहर का क्या करूं? बस बात खत्म। जागने से मज़ामीन मिलते हैं। मैं को रट्टा तो लगा के नहीं आता, मैं रट्टा नहीं लगा के आता। जब मेरे सामने स्क्रीन है, पढ़ के सुना रहा हूं, वो जो अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है आपकी तवज्जो से मिलता है, आपकी तवज्जो से मिलता है। मैं रात गुफ्तगू कर रहा था, मेरी गुफ्तगू खत्म नहीं हो रही थी, घड़ी पे नजर थी, अल्लाह की तरफ से इल्म मिल रहा था, अल्लाह की तरफ से इल्म मिल रहा था, और वो आपकी तवज्जो पे होता है, तवज्जो पे होता है। मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि बहुत लंबे सफर, रूह के सफर के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ लेना पड़ेगा। इसी तरह होगा तो मैं तो नहीं चल सकूंगा। मिन्नत करता हूं आपकी। यूं कहा, बात करने वाला चिंगारी है, सुनने वाले फूंके मारने वाले हैं। बात करने वाला क्या है? चिंगारी है, और सुनने वाला फूंके मारने वाले हैं। और ये फूंके मारने वाले अगर फूंके मारेंगे तो चिंगारी अंगारा बन जाएगी, और फिर मजीद फूंके मारेंगे तो अंगारे शोले बन जाएंगे, और मजीद फूंके मारेंगे फिर शोले जंगल को जला देंगे। है सब कुछ आप सब कुछ है। चिंगारी को फूंके मार के अंगारा बना दें, अंगारे को फूंके मार के शोले बना दें, और फिर भामड़ मचा दें। रूह का सफर तलब से तय होता है, और तलब हर चीज को भुला देती है।
इसी बंदे सोने वाले को कहो कि अब मैं तुझे मोबाइल पे एक वीडियो दिखाता हूं, देख इसकी नींद कहां जाती है। मालूम हुआ जहां तलब होती है वहां नींद उड़ जाती है। चलो एक थोड़ा सा एक वाकया सुना दूं। एक सफर में ना हमारे साथ एक साहब थे, तो क्या करते थे, जब भी कोई खैर का अमल होता था कहते थे ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है। ठंड सर्दी नहीं कहते थे, कहते ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत, ऐसे कांपना शुरू करते थे और फिर चुप करके सो जाते थे। हर वक्त यही करते थे। और अगर कोई उनका एक जो है वो दिलचस्प उनका एक किरदार था, सियासी आदमी था, सियासी पार्टी थी, उसके लिए दिलो जान की बाजी लगा देते थे। अगर वो हो जाती तो ठंडी ठंडी सब गई, घंटों बैठ के उस पर बात करते थे। एक दफा मैंने कहा आप हाजी साहब अब बैठ जाएं, साथ हल्का लगा हुआ है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत, तबीयत खराब है, दिमाग ना ऐसे सुन है, बोला नहीं जा रहा, जुबान तक ठंड पहुंच चुकी और दिमाग ऐसे पकड़ा हुआ है। हाथ भी बकायदा करते थे और इसे समझाते थे, दिमाग पकड़ा हुआ है, जुबान बोल नहीं रही। अच्छा वो सो गए। मैंने दो बंदों को कहा इनके करीब बैठ के ना उस सियासी पार्टी की बुराइयां करो, मुल्क को खा गए, कौम को खा गए, यूं कर गए, यूं का, बस थोड़ी सी की है तो एकदम उठे नहीं। हाँ मैंने कहा आपकी ठंडी है, जुबान आपकी बोलती नहीं। कह रही है क्या बकवास कर रहे हैं, दिमाग में। कहा आपका दिमाग सुन है, वही इनको बिठाओ कि जुबान नहीं बोल रही, ठंडी बहुत है और आपकी हर चीज खत्म हो चुकी है। उसने कहा छोड़ो ठंडी को, छोड़ो, बात करो मुझसे। क्या बात कर रहे थे तुमने ये गलत बात की, ये गलत बात की। मैंने उनसे कहा था जब ये जलाल में आएंगे ना फिर इन्हें समझाना कि देखें दुनिया के मिट जाने वाले निजाम के लिए तो अपने आप को आप इतना, और रूहानियत के अनमिंट मिजाज निजाम जो ना मिटने वाला है उसके लिए कुछ चीजें अपनी तबीयत को खत्म करने के लिए मुसल्लत की जाती हैं और कुछ चीजें अपने आप को चाको चौबंद करने के लिए पैदा की जाती हैं। फिर उसमें बैठने का अंदाज, फिर उसमें लेने का अंदाज, जो पहले से ही टेक तलाश करे और टेक तलाश करके और पहले से यूं करके बैठे और कहे कि मेरे अंदर रूहानियत भी आ जाए, बर्तन रखे उल्टा और कहे बारिश में भर भी जाए, कैसे मुमकिन है? नहीं होगा। बर्तन उल्टा हो और फिर कहे कि भर भी जाए, कैसे भरेगा? यहां 3 टाइम सोने वाला मजमा तो है, 5 टाइम सोने वाले भी हैं। अगर 3 टाइम सो के भी नींद पूरी नहीं हो रही फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें कि या अल्लाह ये नींद नहीं है, ये वो है जिससे हुजूर ने पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, मेरे हुजूर ने इससे पनाह मांगी है। अल्लाह ये वो चीज है जिससे मेरे हुजूर ने पनाह मांगी है जो मेरी दुनिया आखिरत का खसारा, दुनिया आखिरत का घाटा, दुनिया आखिरत का नुकसान है। हमें अपने आप को इस मौजू पे संभालना पड़ेगा, अपनी जात को इस मेहनत पे लाना पड़ेगा, वरना बंदे बैठे बैठे नींद में आके गिर जाएंगे, खुद गिर जाएंगे। लोग उनको संभाल रहे होंगे, 5 वक्त सोने वाले गिर जाएंगे। मेरी दरखास्त है मैं भी इस तलब की मोहताजी को ज़ाहिर करूं, आप भी इस तलब की मोहताजी को ज़ाहिर करें। कीमती है आप, बड़ी कुर्बानी से घर बार छोड़ के आए हैं, अगर घर बार छोड़ के आके भी यहां सोना और खाना हुआ, जिंदगी का सफर तो तय हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अच्छा उसका नुकसान क्या होगा? या इस वक्त दौलत तकसीम हो रही है, बख्त की, नसीब की, मुकद्दर की, हमेशा सुबह बख्त नसीब मुकद्दर तकसीम होता है, ये आके भी महरूम रह जाएगा। नस्लों को गरीब, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, अपने लिए मुश्किलात, अपने लिए परेशानियां, अपने लिए रिस्क की तंगियां, सेहत की तंगियां, घर की उलझने, परेशानियां, अपने लिए सारे मसाइल इकट्ठे करके खुद ले जाएगा। जबकि यहां मसाइल हल कराने आया था। सुबह का वक्त खास नसीब बांटने का, बख्त और नसीब का वक्त सुबह का है। क्या ख्याल? सुबह का वक्त ही नसीब का वक्त होता है, बरकत मिलने का, नसीब मिलने का, बख्त मिलने का, बख्त की दौलत मिलने का, सुबह का वक्त होता है। और सुबह के वक्त अगर इसने नींद को ना तोड़ने के लिए, देखें अभी तक बंदे सो रहे हैं, मेरी आंखों के सामने है, नींद को ना तोड़ने के लिए तरीका करना पड़ेगा। कौन सा मैं बैठने का अंदाज अख्तियार करूं मुझे नींद ना आए,
वो तो जब जिसको लगी है फिर वो सारे रास्ते खुद तलाश करता है। सुबह का वक्त है, बहुत कीमती वक्त है, और इस वक्त में नसीब और मुकद्दर और वक्त तकसीम होता है। नस्लों में अपने लिए बरकतों के दरवाजे, रिस्क वुसअत के दरवाजे इस वक्त तकसीम होते हैं। कहीं तकसीम का वक्त हो और हम, जिसको मैं अक्सर एक लफ्ज कहता हूं, बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त को कैसे कदरदानी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो, इसके लिए पहले से तैयारी हो पहले से। बैठने में, सोचने में तैयार होके बैठे, तलब के साथ पहले से तैयार होके बैठे। जैसे नमाज के लिए वुजू पहले से तैयारी है, अजान के बाद नमाज का इंतजार तैयारी है, इस तरह यहां पहले से तैयारी हो कि फजर के वक्त अल्लाह की रहमत का वक्त और उसकी अता और तलब का वक्त है। ये जो आप रोज बैठ के जिक्र करते हैं, आप गुमान नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के खजानों से इस सच्ची तलब से कितना पा रहे हैं, इस जिक्र की बरकतों से कितने खजाने पा रहे हैं, और कितने फैसले ऊपर से तय हो गया था इसके लिए फक्र गुर्बत तंगदस्ती लिख दो, तय हो गया था इसके लिए इफलास लिख दो, तय हो गया था इसके लिए बीमारियां और परेशानियां लिख दो, तय हो गया था इसकी नस्लों में बेऔलादियां लिख दो, इसके निशान को मिटा दो। सुबह के वक्त तड़प तलब, तड़प तलब, तड़प तलब से जब जिक्र करते हैं और इसमें आजम का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक अपने लिखे खुद मिटा देता है। इसलिए कहते हैं दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, दुआएं बदल देती हैं। ये दुआ बैठ के करते हैं। इसलिए मेरी दरखास्त है, इस वक्त तो खास अपने आप को कश्फुल माजूब का सबक सुनने के लिए और जिक्र और दुआ के लिए अपने आप को खास तैयार रखा करें। क्यों? दौलत मिलते ही वो कोशिश करेगा किसी तरह दौलत तकसीम होने का वक्त है, इसको सुला दूं। घर से तो निकाला, अब वो कहते हैं घर से निकला है, यहां आके पानी नहीं दूंगा। एक दरवेश थे, नमाज के लिए निकले, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हो गए, फिर गए, कपड़े बदले, धोए, फिर आए, फिर गिर गए कीचड़ में, फिर गए। जब 3 दफा ऐसा हो चुका तो 4थी दफा एक साहब ने उनको संभाल लिया और मस्जिद तक पहुंचाया। कहने लगे भला हुआ आपका, आप बड़े नेक भले माने से, आपने मुझे पहुंचा दी। कौन है? कहा मैं शैतान हूं। तो ये आपने क्यों किया? फरमाया जब पहली दफा इनको उठा दो, जब पहली दफा आप गिरे थे, पहली दफा तो, और अज़्म किया था कि मैं फिर जाऊंगा, अपने कपड़े धो के, अल्लाह ने मगफरत कर दी। जब दूसरी दफा गिरे और आपने अज़्म किया कि कपड़े धो साफ करके फिर जाऊंगा, आपके घर वालों की मगफरत हो गई। जब तीसरी दफा आप गिरे और अज़्म किया, आपके मोहल्ले वालों की मगफरत हो गई। मैंने कहा काम खराब है बाबा, अब गिरता है तो कहीं और को बख्शवाएगा। आपका अज़्म, आपका जज्बा फैसले करवाता है। तो सुबह अज़्म के साथ और जज्बों के साथ बैठा करें, पहले से तैयारी करें। कौन सी हालत, कौन सी जगह, कौन सा अंदाज ऐसा हो, कौन सी हालत, कौन सी जगह, कौन सा अंदाज ऐसा हो, मैं अपनी तलब को अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। अल्लाह ये मेरी तलब है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, आगे तेरी शफकत होगी। पूछा अल्लाह के पास कौन पहुंचेगा? उन्हें कैसे पहुंच सकते हैं? एक बच्चा कहने लगा मैं पहुंचूंगा। कहा कैसे? कहा शहर की सबसे ऊंची इमारत तलाश करूंगा, इमारत तलाश करके सीढ़ी रखूंगा, सीढ़ी पे चढ़ कर कहूंगा या अल्लाह यहां तक पहुंचना मेरा काम है, आगे बुलाना तेरा काम है। अपनी तलब ज़हर करें, कल से अपनी तलब ज़हर करें, और उस तलब की कैफियत को कैसे बनाना है, उसकी बाकायदा तैयारी हो, उसकी बाकायदा मेहनत हो। उस तैयारी और मेहनत से फिर इंशाअल्लाह ताला सुबह के वक्त बख्त, मुकद्दर, तकसीम और रहमत एक खास घड़ी होती है। सुबह का लम्हा है ही बड़ा कीमती है, ये खास लम्हा होता है, और इस पे इंशाअल्लाह उसकी रहमत मुतवज्जे हो जाती है। ठीक है ना? अब बैठ के जिक्र करेंगे तड़प के साथ, और एक यकीन से करेंगे। ये इसमें आजम है, और इसमें आजम से अर्शों पे फैसले होते हैं। इसमें आजम से अर्शों का निजाम,
इसमें आजम से अर्शों में बरकतें मेरे लिए जो मौजूद हैं वो जमीनों पे उतरती हैं। इस इसमें आजम से और सख्त तसव्वुर हो और सख्त तवज्जो हो और सख्त ध्यान हो। हाँ, जितना ताकत तवज्जो, जितना ताकत ध्यान होगा, उतना ज्यादा उसकी बारगाह में रहमतें और बरकतें और उतना ज्यादा करम होगा। और आज की रात बड़ी अहम है। आज जो है तो कहाँ है? आज 17 रमजान के पैकेज हैं, बहुत माशाल्लाह बाबरकत पैकेज है। आज बहुत खैरें और बरकतें तकसीम होंगी। तो अभी से अब बैठ के आप जिक्र करेंगे पूरी तवज्जो से, पूरे यकीन से और पूरे ध्यान, ठीक है ना? तवज्जो से, और जितना तवज्जो और जितना ध्यान होगा उतना उसकी रहमत मुतवज्जह होगी। डूब के पूरे दलब के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और पूरे ध्यान के साथ, और जो आपको नियतें दी हुई हैं उन नियतों का